So in last class, we have talked about how to calculate pH. Okay. So and we have started pH calculation. I will give you one more example, and you have to give me what is going to be the pH. Okay. So this is so. Let's say we are mixing 400 ml of 0.02 molar H2SO4 plus 400 ml of 0.01 molar HCl. Okay, plus we are adding 200 ml water. Okay, so find pH. B. If we will add 200 ml of 0.05 molar NaOH in the above solution, what will be pH of final solution? Let's see, solve. लास्ट पार्ट वी आर डूइंग, बस ये जो क्वेश्चन है ना, ए और बी हमने जो कराए थे, है ना, उनके थोड़े सब पार्ट्स है. What you have to do in all those things, you have to find the concentration of H plus ion and then you can apply minus log H plus, which is pH. ये आपको करना है. देखते हैं, चलो भाई. ओके, आई गॉट फर्स्ट आंसर. ठीक है, बट एक ही आंसर मिला है. आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व. कौन सा फॉर्मूला लगाना है, याद है सबको? करेक्ट ध्वनि. तो इसमें टोटल वॉल्यूम याद रखना है ना, 200 ml वाटर है, ये भी याद रखना है. द वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज. चलो लेट्स सॉल्व, या फिर नहीं, 2 मिनट और. आई विल गिव 2 more minutes.
चलो ठीक है, ओके। लेट्स सी कि कैसे आ रहे हैं आंसर्स। अनुष्का, आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, गलत है। तो देखो उसमें बाकी लोगों के आए हैं। So what is happening over here? We have to check. This is H2SO4. So be careful. H plus ion concentration is nothing but over here N1 M1 B1 plus N2 M2 V2. These are the moles of. These are effectively moles of H plus ion divided by total volume. So you have to write V1 plus V2 plus V3, which is nothing but water. So just think like this कि ये total volume हो गया और ये total moles. Total moles of H plus ion coming from H2SO4. So you will write molarity into volume. Molarity into volume is moles of H2SO4 into N, that is moles of H plus ion coming from H2SO4. Similarly, you are going to write molarity into volume, that is moles of HCl into N1, that is moles of H plus ion. So this is what we have to do. This is the formula N1 M1V1 plus N2 M2V2. So just write the value. So N1 is 2, M1 is 0.02 into 400 plus 1 into 0.02 into 400 divided by 1000. So this is going to be, we are going to remove, then this is 2 into 4, 8 or 8 or 2. Sorry, this is 0.01. Sorry. Yeah. So this is 0.01. Okay. So this is going to be 8 into 2, 16. And this is 4 divided by 100. So this is 20 by, 20 by 1000 or 2 by 100. What is pH? So pH is minus log H plus. So you can write this is nothing but 2 into 10 to the power minus 2. Just put the value minus log 2 into 10 to the power minus 2 is nothing but minus log 2 plus 2, which is 1.7. Well, answer 1.7. Now what we are doing is we are adding NaOH. What NaOH is going to do? It is going to neutralize H plus ion. कितने H plus ion को neutralize करेगा? जितने OH minus ion होंगे. So what will happen? Now in B case, what is H plus ion concentration now? So total moles of H plus ion minus total moles of OH minus ion divided by volume. Divided by total volume. Okay, that is going to be effective. यहाँ पे पहले कितने millimoles थे यहाँ पे? We are talking about moles, so that is 2 millimoles. Let's say so total millimoles you can write यहाँ पे. Okay. So H plus ion concentration is going to remain is 20 minus कितने millimoles OH minus के डाले आपने? So N1, so that is 1. 0.05 into 200, so that is going to be 10. So 20 minus 10 divided by volume कितना हो जाएगा? 1000 पहले से ही था, 200 और डाल दिया, so 1200. That is 10 divided by 1200, or you can say 1 by 120. Okay. Now you can write pH is nothing but minus log H plus, which is nothing but minus log 1 by 120, or you can say log 120. log 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 12 plus 10, तो 12 कितना हो जाएगा? है ना, 4 plus 3, 1.08 plus 1, so that is log, I'm just writing log 4 plus log 3 plus log 10. So that is 0.6 plus 0.48 plus 1, so that is 2.0. Okay, so that's how you are going to solve it. समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं पे? चलो, let's say now we are talking about the second condition, है ना? Second condition is B, when concentration of H plus ion from acid is less than 10 to the power minus 6 molar. So we have seen one example. Let's say what is pH of
10 to our minus 8 molar HCl. So what will happen over here? Now in this case, I'm writing solution. H plus total is going to be H plus coming from acid and plus H plus coming from water. इसमें नॉर्मेलिटी बनती, हमने नॉर्मेलिटी कहीं लिखी नहीं है, मोलैरिटी लिए है। एन फैक्टर 1 होगा ना, कितने OH माइनस दे रहा है, कितने H प्लस आयन दे रहा है, HCl का 1, NaOH का 1। सर ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा ना। HCl मैंने बोला था कि पहले याद होना चाहिए कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। यहाँ पे सब स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि कौन पार्शियल डिसोसिएट होगा। में आया HCl, H2SO4, NaOH सब स्ट्रॉन्ग है। जब इसीलिए मैंने कहा था कि वो याद होना चाहिए वीक एसिड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं, कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है। यहाँ कोई इक्विलिब्रियम अभी तक हमने सिखाया ही नहीं है। अब यहाँ ये देखो, ये जो H प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड मेनली, और ये जो H प्लस वाटर है ये एक तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। व्हाट विल हैपन ओवर हियर, एक तो तरीका ये है कि हम इसको ऐसे लिख लें, and we are going to say कि whatever the H plus ion over here coming from here is, let's say जो भी water की concentration है C, H plus ion is coming from 10 to our minus 8, so that is 0, C minus C alpha, so that is 10 to our minus 8 plus C alpha, and that is C alpha. Now you can write this C alpha into C alpha is Kw. What is Kw? So you can write Kw is H plus ion concentration into OH minus ion concentration always. So Kw is nothing but 10 to our minus 14, which is nothing but 10 to our minus 8 plus C alpha into C alpha. So let's say C alpha we are treating as X. What is going to be the equation? Let's say, so that is going to be, इसका ये x square हो जाएगा, ये x हो जाएगा, एक quadratic बन जाएगा. Hence, you can write C alpha का whole square plus 10 to our minus 8 C alpha minus 10 to our minus 14 equals to 0. Now, कुछ लोग आप में से सोच रहे होंगे कि सर हमने 10 to our minus 7 क्यों नहीं लिखा, है ना। 10 to our minus 7 आप लिख सकते हो, राइट, उससे भी आंसर आपका अप्रोक्सीमेट आता है। एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं आएगा वो समझ लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता है यहाँ पे, वाटर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम है। अगर मान लो एसिड से H प्लस आयन नहीं आ रहे होते तो 10 to our minus 7 आता, लेकिन एसिड से H प्लस आयन आ रहे हैं तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। H2O से 10 to our minus 7 से थोड़े से कम H प्लस आएंगे। मेरी बात फिर से सुनो, व्हाट आई एम सेइंग इज, यहाँ देखो H2O क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रो, अगर केवल प्योर वाटर होता तो हम डायरेक्टली बोलते हैं 10 to our minus 7 आएगा। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में भी अगर आप 10 to our minus 7 करके आंसर लिख दोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली करेक्ट ही होगा। I also want you to understand कि वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। H2O being a weak electrolyte, उसमें अगर आपने एसिड डाला तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसलिए H2O से आने वाले जो H प्लस है वो एग्जैक्टली 10 to our minus 7 नहीं होंगे। कितने होंगे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया C ऐसे। अब इसका रूट लेना है आपको, C अल्फा की वैल्यू लेनी है। What is going to be C alpha? Then it is equals to minus B plus minus B square minus 4AC. This is going to be B square, that is 10 to our minus 16, right? Okay, and this is going to be plus 4AC, that is nothing but 4 into A is 1 and C is 10 to our minus 14.
डिवाइड बाई, तो सी अल्फा ऑब्वियसली माइनस साइन लगेगा नहीं यहाँ पे, तो सी अल्फा इज गोइंग टू बी माइनस 10 टू पावर माइनस 8 प्लस, अब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10 टू पावर माइनस 16, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस 16 प्लस 400 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 डिवाइड बाई 2। सी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 10 टू पावर माइनस 8। अच्छा ये हो जाएगा, अगर इससे कॉमन लेंगे तो 401, 10 टू पावर माइनस 16 लेंगे ना, 401 इसका रूट लेंगे तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा, लेट्स से आई एम राइटिंग 20, ठीक है, इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइड बाय 2। सी अल्फा की वैल्यू कितनी आई, सी अल्फा की वैल्यू आई, यहाँ से आप 10 टू पावर माइनस 8 कॉमन ले लोगे तो 19/2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। सॉरी 10 टू पावर माइनस 8, एक मिनट एक मिनट, क्या है डाउट अपना पूछ लो, आ जाओ अनुष्का। सर मतलब आपने बोला कि हम लोग डायरेक्ट 10⁻⁻7 नहीं ले सकते क्योंकि वो मतलब H प्लस का कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा ना, करेक्ट, तो सर OH माइनस का तो 0 ही है ना। तो क्या हुआ, आप एक कोई भी रिएक्टेंट आप अगर मान लो डालोगे, कोई भी एक रिएक्टेंट, रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना, हाँ ये साइड बैकवर्ड। बस यही हम कह रहे हैं, ओके सर। ठीक है। यस। और क्या प्लस माइनस का कहा हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या, ठीक है, एक मिनट मैं अभी यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, राइट, एनीवन इज हैविंग डाउट विल टॉक लिटिल बिट लेटर। यहाँ से देखो सी अल्फा की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से सी अल्फा की वैल्यू आई आपको, अगर हम लिखेंगे तो इज अप्रोक्सीमेटली और क्लोज टू 9.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ठीक है ना, सॉरी 10 टू पावर माइनस 8 नॉट 7, ओके ये तो आ गया। दिस इज नथिंग बट इफ यू आर गोइंग टू राइट 0.95 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, and this is nothing but coming from water। C alpha क्या है, what is C alpha, C alpha is ना H plus ion coming from water, 10 to power minus 8 क्या है, एसिड से आने वाले हैं, C alpha वाटर से आने वाले हैं, राइट, so that is C alpha। यहाँ पे आप देख सकते हो which is not exactly 1 into 10 to power minus 7, is slightly less than 10 like 1 into 10 to power minus 7। so what is H plus total, अब क्या हो जाएगा यहाँ से, H plus coming from acid है ना, H plus coming from water, so that is nothing but 10 to power minus 8 plus, you can write 9.5 into 10 to power minus 8, which is nothing but we are going to take one common, so 10 to power minus 8 common, sorry, so this is going to be 10.5 into 10 to power minus 8, or you can say 1.05 into 10 to power minus 7। if you are going to take the pH which is going to be slightly less than 7 है ना, तो इसका pH ले लेते हैं, तो 105 को हम लिख सकते हैं 15 into 7, ठीक है, सो 15 एंड 15 का कितना हो जाएगा, 5 प्लस लॉग 5 प्लस लॉग 3 प्लस 7, राइट, so this is what you have to do anyway, minus log H plus, so minus log we can write 105 into 10 to power minus 9 like that, so then it is minus log 5 plus minus मतलब minus log 3 log 7 plus 9, so that is minus 0.7, 0.48 plus 0.85 plus 9, and I think we have taken some approximate value,
यहाँ पे 0.697 को लिख लिया है, इसलिए थोड़ा सा ये ज्यादा आ रहा है, ये थोड़ी वैल्यू कमी आएगी, ठीक है। दिस इज कमिंग अराउंड 2.03, थोड़ा सा ये ज्यादा है एक्चुअली में, इट इज गोइंग टू बी, क्योंकि थोड़ा हमने इनको राउंड ऑफ कर रखा है। तो इफ यू आर गोइंग टू टेक द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 1.05, थोड़ी सी इससे कम आएगी जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ, राइट। So for that we are writing exact value, let's say 0.845477. If you are going to apply like this, then it will be 6.98. So what is the pH? 6.98. ये मैंने बता दिया ना, इससे तो 6.97 आएगा, लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज लेते जाएंगे ना तो वो 6.98 के आसपास आएगा। pH is nothing but 6.98. So you can see it is slightly less than 7. अगर मैं मान लो 10⁻⁹ भी कर दूंगा, राइट, then it is not going to cross 10⁻⁷ मार्क। तो टोटल H प्लस आएंगे वो हमेशा, कि H वाटर से आने वाले जो जो है क्या कहते हैं H प्लस आयन, राइट, वो आप ऐड करोगे, देन इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन 10⁻⁷। ठीक है, तो आप इसमें परेशान मत हो वैल्यूज में, आई थिंक यू जस्ट पुट द वैल्यूज, या फिर ऐसे भी अप्रोक्सीमेशन लेके भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, जो वैल्यू में इतना ध्यान मत दो, ठीक है। आई थिंक 6.98 के आसपास आना चाहिए, वी हैव टू टेक द एग्जैक्ट वैल्यू। पेपर में डायरेक्ट 10⁻⁷ ले सकते हैं, यस। तो उसके लिए एक अप्रोक्सीमेशन मेथड भी हम समझ लेते हैं, तो इससे आपको एग्जैक्ट आंसर आ गया। बट if you are want to let's say calculate approximate value, then approximately क्या हो जाएगा, approximately H plus total is nothing but H plus acid plus H plus water. So this is 10⁻⁸, this is 10⁻⁷, you have directly written, ठीक है। So then it is nothing but 1.1 into 10⁻⁷. So pH is going to be minus log 1.1 into 10⁻⁷. ठीक है, तो इससे आप वैल्यू निकाल लोगे। log 10 is 1, log 12 is 1.08, उसके बीच का ही कुछ आ जाएगा 1.04 तक ऐसे कुछ, तो ये आ जाएगा log 11, तो log 1.1 कितना होगा, 0.04 है ना, उससे जो वैल्यू आएगी वो दैट इज गोइंग टू बी क्लोज टू 6.96 समथिंग, ठीक है। तो हम उसको लिख सकते हैं। हमको समझ में आया, हमने क्या किया, हमने पहले वाटर से निकलने वाले H प्लस आयन निकाले, ठीक है, बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अप्रोक्सीमेट मेथड अब गड़बड़ हो जाएगा जब बहुत क्लोज आंसर दे रखे हो, 2-3 ऑप्शन ऐसे दे रखे हो which are really very close. At that time you should know कि how to calculate exact answer.
I want you to calculate pH of 10 to the power minus 7 molar HCl. pH equals to 10 to the power minus 7 molar HCl. बोलो। सर एक बार आप इस पेज का स्टार्टिंग वाला पार्ट दिखा सकते हो? ये समझ में आ गया तुम्हें क्या करना है? यस सर। 10 to the power minus 7 मोलर HCl का pH बताओ भाई। वाटर की कंसंट्रेशन को लेने की जरूरत नहीं है वेदांत, है ना, क्योंकि हमें KW पता है। अगर हम वाटर की कंसंट्रेशन को इंक्लूड करेंगे तो हमें KD यूज करना पड़ेगा। डोंट वांट दैट। यहाँ वाटर के लिए आप KD भी यूज कर सकते हो और KW भी यूज कर सकते हो। अगर आप KD लिखते तो फिर आप ऐसे लिखते, है ना, इसी को KD H plus OH minus and water concentration. When you are going to multiply this over here, then KW will come. So I have directly written like this. समझ आ गया? चलो अब जल्दी से फिर 10 to the minus 7 मोलर HCl का pH बताओ भाई। देखते कौन बताता है सबसे पहले। मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं चाहिए, ठीक है? करेक्ट अनुष्का। हाँ HCl का ही बता दो, किसी का भी बता दो, मतलब 10 to the minus 7 मोलर HCl का बताना है। HCl की जगह HNO3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन, what calculate pH of 10 to the minus 7 molar to the minus 7 molar HCl. It is going to be close to 6.8. ठीक है, मैंने ये हिंट भी दे दिया है। ओके करेक्ट। तो काफी लोगों के आंसर आ गए। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, राइट? वी आर सेइंग 10 to the minus 7 molar HCl. So H plus total you have to calculate, which is nothing but H plus coming from acid, which is HCl, the H plus coming from water, which is going to be C alpha. Okay, then it is 10 to the minus 7 plus C alpha. Anyway, we are going to write like this: H2O, H plus OH minus, C 10 to the minus 7, 0, C minus C alpha 10 to the minus 7 plus C alpha, and C alpha. Then you can write KW, which is nothing but 10 to the minus 40, which is nothing but 10 to the minus 7 plus C alpha into C alpha.
So there is going to be one quadratic, which is C alpha whole square plus 10 to the power minus 7 C alpha minus 10 to the power minus 14 equals to 0. We are going to write, so C alpha is nothing but minus 10 to the power minus 7 plus 10 to the power minus 14 plus 4 into 10 to the power minus 14 divide by 2, which is nothing but 4 और ये 1 5 हो जाएगा. So this is nothing but 10 to the power minus 7 minus 1 plus root 5 into 10 to the power minus 7 divided by 2. C alpha is nothing but root 5 की वैल्यू कितनी होती है 2.24 5 2.24 2.23 लिया है, चलो 2.24 ले ले रहे हैं ना, थोड़ा 2 से घटने में आसान रहेगा. So this is 2.24, तो ये minus 1, so this is 1.24. 1.24 into 10 to the power minus 7 divided by 2, which is nothing but 0.62 into 10 to the power minus 7. That's it. So now H plus total कितना हो जाएगा 10 to the power minus 7 plus 0.62 into 10 to the power minus 7. So that is 1.62 into 10 to the power minus 7. And the pH minus log 1.62 into 10 to the power minus 7. So it is going to be 1.6 का होता है 0.2. So that's why it is close to 6.8, somewhere I think 6.79 तक आ जाएगा आंसर. Okay, so you will get the answer. ठीक है. अब let's say अब एक दो बातें और समझनी है, नोट है ना, ये कर लिया. तो नोट है sometimes they say we are diluting a solution. If we are diluting a solution to 10 times, then what is the meaning of that? We are diluting a solution to 10 times. Water is added, है ना, water is added and the concentration becomes 1/10. ठीक है. So total volume is increased by 10 times. ठीक है. जैसे 1 लीटर होगा और हम अगर हमने उसका डाइल्यूशन 10 टाइम्स किया है तो कितने लीटर वाटर ऐड करेंगे 10 लीटर या 9 लीटर 9 लीटर. ये समझ में आ रहा है ना, 1 लीटर तो पहले से ही है, 9 लीटर वाटर हम ऐड करेंगे तो जाके टोटल 10 लीटर हो जाएगा. ठीक है. तो ये याद रखना है. तो इसमें याद रखना है कि पहली बात तो जस्ट एक 1 मिनट है ना, ये लिख लो, मेरे को ये फोन लेना है.
Okay, so what I was saying is, you know, so I am saying dilution of solution by 10 times, है ना, means final concentration of solution will be 1/10 of initial concentration. ठीक है, तो एक जैसे अगर मैंने बोला कि लेट्स से एग्जांपल कि pH is equals to 3 diluted by 10 times, यहाँ पे pH क्या हो जाएगा, H equals to 3 का मतलब हो गया H plus आयन की कंसंट्रेशन टेंड्स टू पावर -3, ठीक है. Now diluted by 10 times means H plus ion concentration is going to be 10 to the power -4. You know, 10 to the power -3 divided by 10. So pH is going to be 4. ये हम कह सकते हैं जब तक H plus ion की concentration 10 to the power -6 तक है, right? अगर 10 to the power -6 से भी कम है, diluted by 10 times में क्या होगा, pH एक यूनिट से नहीं बढ़ेगा. जैसे मान लो pH ऑलरेडी यहाँ पे H plus ion की concentration 10 to the power -6 है. Another example, pH is equals to 6. Diluted by 10 times का मतलब क्या है, या फिर किसी ने लिख दिया 100 times, लेट्स से, तो क्या हो जाएगा pH, H plus आयन की कंसंट्रेशन 10 to the power -6 है, यहाँ पे H plus आयन की कंसंट्रेशन 10 to the power -8 प्लस, है ना, कंसंट्रेशन कमिंग फ्रॉम वाटर C अल्फा, राइट. वाटर के आने लग जाएंगे, यहाँ तक नहीं काउंट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे एसिड के ही काउंट कर रहे थे. यहाँ पे क्या होगा, ये तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ, HCl डाइल्यूट हुआ, तो वाटर के भी आने लग जाएंगे, विच इज सिग्निफिकेंट. यहाँ तक इग्नोर कर दे रहे थे, है ना, 10 to the power -7 के आसपास जो भी आएंगे. yes, तो दिस इज गोइंग टू बी, है ना, यहाँ पे H plus आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ग्रेटर देन 10 to the power -7 होगी, और pH क्या होगा, क्लोज टू 7. इट इज गोइंग टू बी इन दिस केस 6.98 आ रहा था आंसर, ये हो जाएगा. अब अनदर पॉइंट, another note. If we are not diluting, if we are changing the H plus ion concentration, see, understand the difference. मैंने बोला कि मैंने H plus ion concentration, I have reduced H plus ion concentration by 100 times, and the solution concentration initially is, let's say, 10 to the power -6. If we are changing H plus ion concentration, है ना, without, let's say, when we are changing the H plus ion concentration, right, that means we are adding some NaOH, कुछ बेस डाल रहे हैं, ठीक है, we are not adding water. वहीं पे लिखा हुआ कि अगर हमने H plus ion की concentration चेंज करके 10 to the power -8 ले गए solution में, right, so if we are changing H plus ion concentration to, you know, from 10 to the power -6 to 10 to the power -8, changing H plus ion concentration means we are reducing by 100 times, reducing to 100 times.
So it is from 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 8. That means by addition of, that is happening by addition of base. In that case, what is going to be pH? In that case, what is going to be pH? pH is 6, where H plus ion concentration is 10 to the power minus 6. H plus ion concentration total is 10 to the power minus 8. So pH is going to be 8. So this is the very fine difference. जब पानी डालेंगे, है ना? We are adding water by doing the dilution. केवल पानी डालते रहेंगे तो एसिड एसिड ही रहने वाला है. That's why the 7 जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं होगा. ठीक है. H इक्वल टू 6 था, उसमें आपने और पानी डाल दिया, आपने खूब सारा पानी डाल दिया, तो आपका जो pH होगा वो 7 को क्रॉस नहीं करेगा. लेकिन कहीं पे अगर किसी और तरीके से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, दैट इज नॉट गिवन, तो उसका मतलब यही है कि बेस डाल के ही हो रही है, और it has decreased to 10 to the power minus 8. That means the total H plus ion concentration has decreased, and the total H plus ion concentration now is 10 to the power minus 8. So pH is going to be 8. ये बात कितने लोगों को नहीं समझ में आई? pH जिसको नहीं समझ में आई? Okay, so always put emphasis on total H plus ion. ठीक है, कभी ऐसा कभी आएगा तो आपको याद रखना है कि टोटल H प्लस आयन देखना है. यहाँ पे देखोगे तो वाटर अपने आप ऐड हो जाएगा, देन यू विल गेट द राइट आंसर. वेदांत क्या डाउट है? एक बार मेरे को हाथ दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा. व्हाट डू यू वांट टू से? अभी आप हाथ दिखाओगे तो बताना, देन आई विल टेल यू. अच्छा, ये तो हो गई ये बात. अब दूसरा है कि अगर मान लो सेकंड केस है बी, ना, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन. ये सिंपल है ना. जैसे एग्जांपल वी कैन से NaOH, KOH, है ना, ऑल दोस, राइट, BaOH, VOH, etc. All these basic solutions are given. So we are going to apply the similar concept जो ऊपर लिखा था. Strong acid solution. Only difference is we are going to talk about pH. pH की जगह we are going to talk about pOH. We will talk about OH minus ion concentration. Then we will apply formula is pH equals to 14 minus pOH. Okay. So similar to strong acid solution, there are conditions. If concentration of base greater than 10 to the power minus 6 molar, so OH minus total will be approximately equals to OH minus coming from strong base. In condition 2, if concentration of base is less than 10 to the power minus 6 molar, then OH minus total is nothing but OH minus coming from strong base plus OH minus coming from water. है ना? Here we will neglect OH minus ion coming from water. ये हमने पहले बताया हुआ, भाई सेम हम यहाँ लिख रहे हैं. So we can write let's say similar, let's say example, जैसे यहाँ पे हमने पहले लिखा था, let's say 400 ml of 0.05 molar NaOH plus 400 ml of 0.02 molar KOH plus 200 ml of
0.02 molar BaOH hold twice, let's say. Again, find pH. What we are going to do, we will first calculate OH minus ion concentration, then we will calculate pOH, and then we will calculate pH. So solve. And another question is, let's say how many people are smart. Find pH of 10⁻⁻7 molar NaOH. जीरो 0.02 मोलर के पहले क्या लिखा है? 200 ml, 400 ml, यहाँ पे भी 400 ml. बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, सब अलग अलग आ रहे हैं. भास्करन बेस है, बेस तो पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा.
चलो लेट्स सी सॉल्व ठीक है। So in first question, so volume is given, then you just apply the same formula which I have told you. So N1 M1 B1 N1 OH कितने हैं, एक ही है, 0.05 into 400 कितना हो जाएगा, 5 into 2 5 into 4 sorry 20, यहाँ पे है ना, this is going to be 0.02 into, so this is 8 plus 200 ml into 0.02 into 2, so that is going to be 4 plus 8 36 divided by 100, so that is 36 by 100 sorry 1000. So POH is nothing but minus log OH minus, which is minus log 36, right, minus log 10 to the power minus 3. So minus log 36 is 2 log 6, 1.54, 78 का कितना हो जाएगा, 56 sorry, minus plus this is going to be 3, so this is 1.44. 1.44 is POH, so pH कितना हो जाएगा, 14 minus 1.44, so that is this is going to be 12.56. ठीक है, ये तो सिंपल, मतलब ये यहाँ तक कुछ नहीं अभी दिक्कत होनी चाहिए, अभी आपको आ जाना चाहिए कि अभी कैसे निकालना है। और ये बी वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सेम जो हमने किया है वही करना था। यहाँ पे -7 मोलर HCl लिखा होता है तो हमने क्या निकाला था, पीएच, हमने पीएच निकाला था 6.79 समथिंग। यहाँ पे पीओएच कितना हो जाएगा, डायरेक्टली वी कैन से 6.79, तो पीएच कितना हो जाएगा 14 minus 6.79 which is 7.21. so this is you can understand. जैसे अगर मैं बोलूंगा 10⁻⁸ का कितना होगा, तो 7.02 कितना हो जाएगा, 7.02, ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। पीओएच बोला था क्वेश्चन में, फाइंड पीएच है ना सब जगह, पहले पीओएच निकालो फिर उसमें उसको कन्वर्ट करो पीएच के लिए, 14 माइनस पीएच सॉरी 14 माइनस पीओएच दैट इज पीएच, ठीक है। तो ये तो गए एसिड एंड बेस। अब आती है थर्ड कंडीशन, इन केस ऑफ वीक एसिड, pH of monoprotic weak acid, pH of monoprotic weak acid, जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, CH3COOH, ठीक है, HCN, we can have HCOOH, HOCl, है ना, etc. very many examples can be there. जल्दी से लिखो भाई क्या है, राइट इट। हाँ बोलो वेदांत, क्या डाउट है? सर वो थोड़ा ऊपर जाओ ना, वो नोट में। कौन से वाले नोट में बताओ? ये नहीं सर, नीचे वाला जो है ना, सेकंड वाला वो। बोलो ना उसमें क्या है। सर उसमें प्लस सी अल्फा क्यों नहीं किया H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन में, वो थोड़ा नहीं समझा मुझे। अरे बेस डाल रहे हैं ना। यस सर। अगर हम बेस डाल रहे हैं राइट, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगी वहां पे बेस, जैसे जैसे क्या होगा वहां पे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। जो वाटर के जो आ रहे थे ना H प्लस आयन, वो उसमें इंक्लूड हो गए, न्यूट्रलाइजेशन चल रहा है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन जो है उसमें हम HCl की कंसंट्रेशन नहीं बता रहे हैं,
हम कह रहे हैं कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन वो चेंज हो रही है। व्हाट आई सेड इज ओवर हियर कि ये देखो 10⁻⁻6 था, 10⁻⁸ पहुंच गया है ना, बाय वी हैव चेंज द H प्लस आयन कंसंट्रेशन बाय एडिशन ऑफ बेस। तो अब अगर मान लो, इसका एक तरह से कहने का मतलब यह है कि मैंने 10⁻⁶ मोलर OH माइनस लिख दिया है, फिर तो KW क्या होगा, 10⁻14 होगा। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इज जब हम पानी डालेंगे ना, वहां बेस नहीं है ना, वहां पे तो बस एसिड ही है, एसिड है तो एसिड दैट कैन बी गो अप टिल 7, मतलब टू द 7 से जस्ट थोड़े पहले तक ही pH आ सकता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम टोटल बेस के डालने के कारण टोटल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं। उसमें इंक्लूडेड है वाटर से आने वाली कंसंट्रेशन। सर अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। देखो किसी भी वाटर के, ये बताओ, ये जो KW है ना, विच इज 10⁻⁻14, किसी भी सॉल्यूशन के लिए मान लो अगर मैंने H प्लस 10⁻⁻1 लिख दिया तो OH माइनस अपने आप 10⁻13 हो जाएगा, है ना। यस। जो 10⁻1 है ये क्या है, टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन। मान लो अगर मैंने यहाँ 10⁻6 लिख दिया तो 10⁻8 हो जाएगा ये H प्लस क्या है, टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन, है ना। ये तो हमेशा ट्रू रहेगा ना, जैसे जैसे आप इसको कम करोगे ये बढ़ता जाएगा, या इसको बढ़ाओगे ये कम होता जाएगा। हमने ऐड किया है ना वो बेस, यहाँ पे इंक्रीज द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होगी या नहीं होगी, यस। वही लिखा हुआ है यहाँ पे बस। समझा सर। बस यहाँ ये टोटल है, दैट इज द सॉल्यूशन। ओके सर। चलो बताओ भाई जास्करन, क्या डाउट है। सर वो जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ना सर, वो मुझे थोड़ा नहीं समझ रहा है। कौन सा वाला। सर अभी जो लास्ट वाला किया था हमने। ये POH। यस सर। अरे भाई ये बताओ 10⁻⁷ मोलर के लिए, सर ये नहीं, इसके नीचे वाला। के नीचे तो कोई और है ही नहीं ना। हाँ सर सॉरी, यही करेक्ट। हाँ 10⁻⁷ लिखा हुआ है, राइट। यस तो सर। यहाँ पे भी लिखेंगे OH माइनस कमिंग, टोटल इज गोइंग टू बी 10⁻7 कमिंग फ्रॉम बेस, और जो C अल्फा निकल के आया था 0.95 इंटू 10⁻7 वही लिख देंगे यहाँ पे। OH टोटल कितना आएगा पुराने की तरफ से 1.05 इंटू 10⁻7 में ये 0.95 नहीं आया था, ये कितना आया था 0.62 आया था, सॉरी 0.62। इसको लिख देंगे तो इससे आ जाएगा 1.62 इंटू 10⁻7। UH कितना आ जाएगा 6.79, सेम कहानी है ना। यस सर। यहाँ पे H प्लस की जगह OH माइनस आ गया तो हमने OH माइनस लिख दिया। pH कितना हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। वहां पे 10⁻7 मोलर NaOH HCl के लिए आया था, वही 10⁻7 मोलर NaOH के लिए आएगा। द ओनली डिफरेंस इज वहां पे H प्लस आया था, यहाँ पे OH माइनस आया था। यस सर। तो आप एक बार करके देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, वीक मोनोप्रोटिक एसिड अगर मैंने ले लिया है, ये वाला हम केस कर चुके हैं, वेयर वी हैव डन ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में। ठीक है, तो अगर मान लो हम यहाँ पे CH3COOH का एग्जांपल ले ले रहे हैं, लेते हैं, and then it is going to break as CH3COO- plus H plus. Now what will happen over here is, right, K is nothing but concentration, अच्छा ये भी लिख लो CC alpha वाला expression, at T equals to 0, let's say concentration is C 0 0 ना, ये weak acid है तो यहाँ equilibrium sign आ गया, equals to T equilibrium पे ये C minus C alpha C alpha C alpha, and what will happen, we'll write K is nothing but
CH3 COO minus ion concentration, H plus ion concentration, these are product, divided by reactant which is CH3 COO. It will be C alpha into C alpha divided by C 1 minus alpha. This could be written as C 1 minus alpha. We have taken C common. कट गया, so K is nothing but C alpha square upon 1 minus alpha. ये आपका फॉर्मूला है. इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं. If है ना, let's assume alpha is, let's assume alpha is less than 0.1. So 1 minus alpha is going to be 1. So K is nothing but C alpha square, है ना, and alpha is nothing but under root K by C. Check whether our approximation is correct. ठीक है, पहले हमने मान लिया कि अल्फा जो है वो 0.1 से छोटा है. हमने उसके हिसाब से K की वैल्यू लिखी विच इज C अल्फा स्क्वायर, उससे अल्फा निकाला अंडर रूट K बाई C. का क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई एक एसिड है जिसका K टेंस टू पावर -2 है और आपने उसका C जो लिया है वो लेट्स से टेंस टू पावर -1 ले लिया है, तो यहाँ टेंस टू पावर -3 लिख लेते हैं, नहीं टेंस टू पावर -2 लिखते हैं, टेंस टू पावर -3 में. ठीक है, तो अगर आप अंडर रूट ऐसे करेंगे ना K बाई, तो दिस वैल्यू वुड कम टेंस टू पावर -1. So then it is going to be more than 10 to the -1 का रूट लोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 100. 10 का रूट लेंगे तो 3.24 समथिंग डिवाइड बाय 10, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.32, है ना. अल्फा की वैल्यू 0.32 आएगी. इसका मतलब क्या है, ये assumption हमारा यहाँ गलत हो गया. तो क्या हम K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं, है ना. पहले मानना है, उससे हमने अल्फा की वैल्यू निकाली और चेक करना है कि जो हमने अप्रोक्सीमेशन माना कि वो हमारा सही है या नहीं है. अगर हमारा अप्रोक्सीमेशन सही है देन वी विल गो अहेड. अगर हमारा अप्रोक्सीमेशन नहीं है देन हम ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे. दिस इज ना, सो चेक वेदर आवर approximation is correct. So if that's a condition, if our approximation is correct, that means alpha is less than 0.1, right? And H plus ion concentration is nothing but, H plus ion की concentration क्या हो जाएगी, H plus ion concentration is nothing but C alpha. ठीक है, और अल्फा की वैल्यू आपको पता है वो क्या है, अंडर रूट K by C. H plus is C alpha which is C into under root K by C, which is nothing but under root K dot C. What is pH? pH is minus log H plus. So you will write minus log under root K dot C. So that is nothing but half, that is minus log K minus log C. Minus log K is pK. So pH का फॉर्मूला आ गया half pK minus log C. ठीक है, our approximation is correct. हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, H प्लस आयन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला यहाँ से, और या फिर अगर हमें pK दे रखा है क्वेश्चन में तो यहाँ से. ठीक है, व्हाटएवर, दोनों से आप लगा सकते हो, है ना. इससे ये वाला फॉर्मूला है. ऐसे कंडीशन 2, if our approximation is wrong and alpha which is nothing but under root K by C is greater than 0.1, क्या हो जाएगा, K equals to C alpha square 1 minus alpha, C alpha square equals to, है ना, K into 1 minus alpha C alpha square माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा K अल्फा माइनस K इक्वल्स टू 0. सॉल्व क्वाड्रेटिक.
to find alpha, which is alpha is nothing but minus b minus k plus minus plus, let's say, under root b square k square minus 4ac, so k square plus 4k into c, 4k dot c divide by 2. Alpha निकालो, and then H plus ion concentration is nothing but C alpha, put the value over here. ठीक है, मैं क्या करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, फिर से समझा दे रहा हूँ. ठीक है, तो कभी कभी कैसा होगा जब हम डाइल्यूट कर देंगे सॉल्यूशन को, या फिर कुछ केसेस में राइट अल्फा जो है वो 0.1 से ज्यादा आएगा, तो फिर हम अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते जो हमने यहाँ लिया ना. मोस्ट ऑफ द 99% केसेस में है ना यही वाला फॉर्मूला यूज होता है ना. 95% केसेस में ये वाला केस होगा हमेशा मोस्टली. ये वाला केस भी पता होना चाहिए. तो यहाँ कर क्या रहे हैं ना, ये वाला केस मैंने यहाँ बताया कि मान लो अल्फा आपका 0.1 से बड़ा आने लग गया, तो फिर क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा कैन नॉट बी रिटन एज है ना 1, 1 माइनस अल्फा कैन नॉट बी रिटन एज 1. फिर यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, c अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा हो जाएगी, विच इज वी हैव रिटन, है ना. यहाँ पे एक बात जोड़ सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू 1. डिनोमिनेटर में 2c आएगा, राइट, मैंने वो c मिस कर दिया. यस, तो जिन लोगों को अभी डाउट है वो फिर से मुझसे पूछ लें, डाउट क्लियर कर लें. अब मैंने यहाँ पे बोला है, फिर से देखो व्हाट आई सेड इज, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे CH3COOH राइट का देख रहे हैं, तो ये हमने ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में ये सब बताया था अल्फा और के ठीक है, बट वहां पे अल्फा हमने 0.1 से हमेशा कम ही माना था, एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिटन k इक्वल्स टू c अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा इज नथिंग बट अंडर रूट k बाई c. बट यहाँ पे हमें ये बात बतानी है कि कभी कभी ऐसा होगा कि अल्फा वो 0.1 से ज्यादा होगा, फिर ये अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करेगा ना. 1 माइनस अल्फा कैन नॉट बी रिटन एज 1, वहां दूसरी कंडीशन लगेगी. कंडीशन 1 में क्या किया हमने, कंडीशन 1 में तो जैसा चल रहा था वैसा ही है, तो ये फॉर्मूला बन गया, c अल्फा इज नथिंग बट अंडर रूट k डॉट c और pH इज नथिंग बट हाफ pk माइनस log c. ठीक है, लेकिन जब अप्रोक्सीमेशन जो है वो हमारा रॉन्ग हो गया, तब क्या होगा, अल्फा 0.1 से ज्यादा आ गया, देन यू हैव टू सॉल्व होल क्वाड्रेटिक टू फाइंड अल्फा, और फिर H प्लस आइन C अल्फा से निकालना पड़ेगा. समझ में आया? प्रियंका तुम्हें क्या डाउट है वो तुम पूछ लो. यस, है ना, बताओ. यस, सर जब हम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं लेकिन नेगेटिव तो नहीं ले रहे हैं क्योंकि कि वो नेगेटिव आ ऐड. जाएगा ना, दोनों नेगेटिव वैल्यू. अच्छा, सॉरी सर, थैंक यू. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड. Find pH of 0.1 molar CH3COOH. A, B 10 to power minus 3 molar CH3COOH, and C 10 to power minus 5 molar CH3COOH. Given that K of CH3COOH is 2 into 10 to the power minus 5. ठीक है, ये सॉल्व करना है. ये क्वेश्चन है, मैं थोड़ा क्वेश्चन हटा रहा हूँ, 1 मिनट देखते हैं कि इसमें आ जाएगा क्या.
छोटा हो जा रहा है। चलो पहले ये लिख लो नीचे वाला इधर वाला। In every question, K will be given, yes. Two into 10 to the power minus 5. 2 into 10 to the power minus 5. This is the K value. ये याद रख लो, है ना, बहुत कॉमन है। एक्चुअल वैल्यू तो होती है 1.8 into 10 to the power minus 5, बट वो ने राउंड ऑफ करके 2 into 10 to the power minus 5 बोले। You can remember it. आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम कब है? मुझे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है, शायद 22 से 28 कुछ ऐसा, 25 अप्रैल से है। 22 to 30, right? Okay. चलो ठीक है भाई, बताओ भाई पहला आंसर क्या है? 0.85 फर्स्ट आंसर। आई डोंट थिंक कि 0.85 आएगा। प्रियंका का सही लग रहा है आंसर। कैसे आ रहा है 0.85 भी बताओ। ये एग्जाम की बातें मुझसे मत पूछोगे, कब है क्या है क्या नहीं, है ना। आई हैव नो आइडिया। So let's see, in this case what we can do is first check what is alpha. Alpha is under root k by c. So that is nothing but 2 into 10 to the power minus 5 divided by 0.1 root. So that is nothing but 2 into 10 to the power minus 4, which is root 1. है ना, 414 into 10 to the power minus 2, which can be safely said as कि ये 10 to the power minus 1 से छोटा है। ठीक है, so alpha is, hence alpha is less than 0.1. So what we can do is we can check H plus ion concentration क्या हो जाएगी, under root k dot c. So that is 2 into 10 to the power minus 5 into 10 to the power minus 1, which is, है ना, root 2 into 10 to the power minus 3. So that's it. pH is nothing but minus log H plus. So we can write minus log root 2 minus log 10 to the power minus 3. root 2 का कितना हो जाएगा, ये 1/2, minus 0.15 plus 3, so 2.85. ठीक है, 7.35 नहीं आएगा अमन, 7 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं।
इसी में भी ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड में बी -3 CS3 COOH. So in this case, alpha is going to be under root K by C. So 2 into 10 to the -5 divided by 10 to the -3, which is going to be root 2 into 10 to the -1. So that is definitely more than 10 to the -1. Alpha is greater than 0.1. What we have to do? We have to apply initial concept K equals to C alpha square. तो लिखेंगे K equals to C alpha square 1 minus alpha. K tends to -5 है 2 into 10 to the -5. C tends to -3 है into alpha square 1 minus alpha. C कट कर दो, tends to -2 रह गया, है ना? So what is going to be form? Let's say quadratic alpha square, and when this is going to multiply, ये plus में पहुंच जाएगा plus, हाँ 2 into 10 to the -2 alpha minus 2 into 10 to the -2 equals to 0. सही है? तो कोई प्रॉब्लम इसमें? देख लो पहले कि हमने फर्स्ट कैसे किया। पहले अंडर रूट के हमने ये चेक किया ना, पहले हमने ये बोला था कि हमें चेक करना है हमेशा अल्फा। अगर अल्फा 0.1 से कम है तो जो हम फर्स्ट केस है वो लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, गेट द पीएच वैल्यू। अगर ये नहीं है ऐसा, अल्फा 0.1 से बड़ा है, तो अब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे अल्फा की। ये वैल्यू अल्फा नहीं है ना, ये तो अप्रोक्सीमेटली निकाली थी अल्फा की वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन लेके निकाली थी। पर अप्रोक्सीमेटली भी अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम नहीं है, एग्जैक्टली भी नहीं आएगी, इसलिए फिर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, सॉल्व क्वाड्रेटिक। ओके इज लाइक दिस। सो ये हो गया आपका अल्फा इक्वल्स टू -b -2 into 10 to the -2 plus b square 4 into 10 to the -4 minus 4ac. So then it is going to plus, ये हो जाएगा 8 into 10 to the -2, ठीक है, डिवाइड बाय 2. Now you can write this is 804 हो जाएगा ये। So okay, so what will happen here? Alpha is -2 into 10 to the -2 plus ये कितना हो जाएगा? इसको 4 10 to the -4 में लिखेंगे तो 800 plus 4, so under root 804 into 10 to the -2 डिवाइड बाय 2। 804 का रूट कितना होगा? 28 के आसपास आएगा, 20 पॉइंट समथिंग। तो इसमें सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, राइट? So 28.35 समथिंग आ रहा है। अल्फा इज नथिंग बट -2 into 10 to the -2 plus 28.4 into 10 to the -2 divided by 2. So that is going to be 26. So 26.4 into 10 to the -2 divided by 2. So then it will come, so 2 से डिवाइड कर देंगे तो 132 हो जाएगा 0.132। अल्फा की वैल्यू आ गई 0.132, ठीक है? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई अल्फा की। अब देखो यहाँ से ये एग्जैक्ट वैल्यू आई है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही थी? रूट 2 कितना होता है? 1.414 है ना, into 10 to the -1, तो इससे आ रही थी 0.414।
which is approximately, है ना, ये approximation यूज करके, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है ना, ये करेक्ट नहीं होगा। क्या सही होगा? ये सही होगा जो हमने निकाला है। अब हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो H plus ion is C alpha, so that is nothing but you can write 10 to the minus 3 into alpha is 0.132, or you can write 1.32 into 10 to the minus 4. Find the pH value from applying this formula, minus log 1.32 into 10 to the minus 4. तो pH की वैल्यू क्या आएगी, राइट? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.32 का लॉग लेना पड़ेगा, तो 60 कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66 आ जाएगा, 66। और क्या कर सकते हैं, 200 के आसपास जा सकते हैं, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, है ना। तो उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 200 के आसपास, 1.3 मतलब 20 के आसपास आ जाएगा, राइट? 20 डिवाइड बाई 15 ये हो गया एक तरह से log 20 डिवाइड बाई 15, 1.33 हो गया ना, अप्रोक्सीमेटली 1.33 ले लो, log 4/3, log 4 की वैल्यू 0.6 माइनस log 3 की वैल्यू 0.48, 0.12 आ गया, तो ये आ गया माइनस 0.12 प्लस 4, सो 3.8। अब देखो ये तो है एग्जैक्ट आंसर, बट ऑब्वियसली इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो मेन रेंज वाले में आएगा तो क्या करेंगे, ऑप्शन अगर क्लोज नहीं है तो इसी से निकाल देंगे, ठीक है, इसे निकाल देंगे, इसी से निकाल देंगे। मेंस में हम यही फॉर्मूला डाल देंगे। मान लो अगर हम अप्रोक्सीमेट आंसर लिखते तो क्या आता, देख लेते हैं कितना डिफरेंस आता। अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ जाता, pH equals to half, sorry, H plus is nothing but half under root K dot C, that is 2 into 10 to the minus 5 into 10 to the minus 3, so this is nothing but 2 into 10 to the minus 2 into 10 to the minus 4, तो pH कितना आ जाता है यहाँ पे 3.85, ठीक है। रूट को भी निकाला था इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, का pH कितना आया था 0.15, है ना। लॉग मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से लिख लें, है ना। माइनस लॉग √2 into 10 to the minus 4, which is nothing but minus log 1/2, 2 रूट बाहर आ जाएगा, माइनस log 10 to the minus 4, log 2 की वैल्यू 0.3, ये अप्रोक्सीमेट आंसर देगा। हाँ, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि, लेकिन अगर ऑप्शंस जैसे अभी आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं, है ना, उन सब में क्या होगा, अगर आपका थोड़ा भी डिफरेंस आ जाएगा तो वो गलती हो जाएगा ना। तो आप देख लेना है, मेंस वाले क्वेश्चंस हैं तो आप ये अप्रोच कर सकते हो अप्रोक्सीमेट आंसर वाली, लेकिन अगर एडवांस है और या फिर बहुत ऑप्शंस क्लोज हैं तो फिर आपको ये वाली अप्रोच नहीं रखनी है, राइट। हाँ, दो डिजिट में है ना, डिफरेंस आ गया ना, 3.88 आ रहा है और यहाँ पे 3.85 आ रहा है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक है ना। एनीवे, मैंने दोनों बातें बता दी हैं और आपको ये भी बता दिया कि कैसे अप्लाई करना है। अब थर्ड वाला पार्ट आपको खुद करना है, सी, ठीक है, सॉल्व बाय योरसेल्फ, सेम मेथड है जैसे बी से किया है, दोनों आंसर निकालने हैं, अप्रोक्सीमेटली भी और एग्जैक्टली भी। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, एनीवन? अब देखो इसी में आपको याद क्या रखना है, कब आपको केस 1 लगाना है, कब आपको केस 3 लगाना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कब स्ट्रॉन्ग एसिड है और कब वीक एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर मैंने लिखा होता 10 to the minus 3 मोलर HCl, pH कितना हो जाता था 3, यहाँ पे मैंने 10 to the minus 3 मोलर लिखा है CH3COOH, इसलिए यहाँ पे 3 नहीं हुआ, राइट।
आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ओके, दैट्स इट। बाय।